Hello everyone, welcome to the channel. So in this lecture, we'll be seeing more about the salts. Okay, so more about different types of salt, like acidic salt, basic salt, and all. So in previous section, we have seen the formation of the salt during the various reaction. Now we'll understand their preparation and the property and their uses. Okay, so हमने प्रीवियस रिएक्शन में बहुत सारे देखे कि हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल था सोडियम। जैसे हम बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में हमें क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था, CO2 रिलीज होता था, H2 रिलीज होता था। सेम इन द केस ऑफ व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। सो दिस आर सम रिएक्शन जहाँ पे हमने देखा कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट। ओके, सो नाउ द फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट डिपेंड्स, लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, write down the formula of the given salt below. There are some of the examples of the salts. Okay, there are the examples of the salts. Identify the acids bases from which the salt may be obtained. Salt having same positive or negative radical said to belong to that family, for example NaCl. Okay, so अभी क्या होता है इसमें, कुछ कुछ सॉल्ट जो होते हैं दैट बिलोंग टू सम ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। ओके, so this NaCl and Na2SO4, sodium sulfate, sodium chloride and sodium sulfate, from where this has been extracted, जहाँ कहाँ से मिलता है हमें। so this is, इनका एक रिएक्शन होता है, वहाँ से तुम्हें ये मिल जाता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब दिस बोथ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम। ओके, दैट इज अ पॉजिटिव रेडिकल वाला पार्ट, सोडियम इज अ पॉजिटिव रेडिकल वाला पार्ट। ओके, so it has been formed from sodium, so therefore this salt will be called as a salt of the salt that belongs to the family of sodium. Okay, suppose I have AlCl3. Okay, I have NaCl, I have let's say MgCl2. This all consists of chlorine, which is a negative radical, so we can say this all belongs to the family of chlorine. Okay, this all belongs to the family of chlorine. वैसे sodium sulfate, H2SO4, these are the some kind, H2SO4 is not a salt, sorry, sodium sulfate, potassium sulfate, okay, magnesium sulfate. If so, these are all the salts of, what you can say, SO4 sulfate, उसके salts है वो. So these are the things how you can define or you can distinguish to where does your फैमिली बिलोंग्स टू। ओके, कहाँ कौन से फैमिली में तुम्हारा सॉल्ट बिलोंग करता है। अगर सारे किसी भी एक रेडिकल से सिमिलर है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दिस ऑल हैव अ क्लोरीन इन कॉमन टू इट, सो दिस all salts belong to the family of a chlorine. This all salts belong to a family of a chlorine. So ऐसे हम define करते हैं। next that we have is pH of salt. ओके, अब कैसे हम पता लगाए कि जो सॉल्ट होता है वो पीएच होता है। सो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन टेकिंग प्लेस, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, जहाँ पे क्या होता था, यू वर एडिंग अ एसिड दैट इज H2SO4 प्लस लेट्स टेक NaOH। ओके, और सिंपलेस्ट जो तुम्हें पता है वो ले लेते HCl और NaOH। ओके, तुम्हें पता है क्या बनने वाला है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर बिकॉज दिस इज एसिड, दिस इज बेस। whenever acid and base reacts together, what they are going to give is salt and a water. Okay, so you are going to get this parts. so यहाँ पे क्या मिलेगा, you will get a salt and you will get a water over here. so here you are going to get NaCl and you are going to get a H2O, you are going to get a H2O. So here you can see this is what you call as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स लाइक दिस, द सॉल्ट व्हाट इट लीड्स योर होल सोल्यूशन टू गेट न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस HCl and NaOH, they are both are called as strong acid and a strong base. strong acid and a strong base. So अगर strong acid और strong base है तो दोनों अपने अपनी जो भी एसिडिटी और बेसिसिटी उनको क्या करेंगे, वो
न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा क्या है, बेस है. सो व्हाट दे विल डू इज वो क्या करेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज इट. बट वही अगर मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किया और वीक बेस का रिएक्शन किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, एसिड की. ओके तो जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा, जो फाइनली तुम्हारा सॉल्ट होगा, दैट सॉल्ट इज गोइंग टू बी एन एसिडिक सॉल्ट. वो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा. अगर वही तुमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया, सो अल्टीमेटली तुम्हारा सोल्यूशन क्या, जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज दी बेसिक सॉल्ट. ओके सो इसको हम एक अलग तरीके से पता लिखते. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे राइट साइड में 100 न्यूटन का फोर्स है और लेफ्ट साइड में क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स है. ओके राइट साइड में क्या है, 100 न्यूटन का फोर्स है और लेफ्ट साइड में 50 न्यूटन का फोर्स है. सो क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेसिकली जो तुम्हारा मूवमेंट होगा, मूवमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर देयर इज 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, जहाँ पे क्या 100 न्यूटन फोर्स है. एंड जो इंटेंसिटी होगा, जिस इंटेंसिटी वो मूव होने वाला है, दैट विल बी द रिमेनिंग जो 50 न्यूटन है. 50 न्यूटन तो उसको ये साइड खींचने के लिए आ गया था, एंड जो रिमेनिंग 50 न्यूटन है वो फोर्स से वो क्या होगा, आगे मूव होगा. तो सेम थिंग हो गई है. अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एक वीक बेस है, सो उसके जो भी अमाउंट है, जो तुम्हारा सॉल्ट रिमेनिंग सॉल्ट होगा, वो कौन सा होगा, एसिड होगा. और वही तुमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया, तो तुम्हारा सॉल्ट क्या होगा, वही सॉल्ट क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग लाइक बेसिक सॉल्ट होगा. दैट सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज दी बेसिक सॉल्ट. ओके सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, if the salt that you are going to get is going to be acidic salt, तो उसका pH क्या होगा, उसका जो pH होगा, it is going to be less than 7. the pH क्या होगा, less than 7. so acidic salt pH is going to be less than 7. okay and वही अगर तुम्हारा बेसिक सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट का pH क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7. और वही न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे कि इस केस में हमें क्या मिल रहा था, एक न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा था. तो इसका क्या होगा, इसका दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल called as neutral salt, which is going to be exactly equal to the pH is going to be exactly equal to the 7. okay so yeah, this is all about how the pH of the salt has been defined. अगर एसिडिक सोल्यूशन है, अगर मोर एसिडिक एंड वीक बेस है, तुम्हारा सॉल्ट एसिडिक होगा. स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट. इफ इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, न्यूट्रल सॉल्ट. वीक एसिड, वीक बेसिक रिएक्शन, neutral salt. okay I hope you are clear till here. The next is the chemicals from common salt. Now you know what is the common salt for us. The common salt for us is the NaCl. so you all have been knowing, since you have learned in your history, that there was a great march for the, like, salt was so important at certain time where we were not getting the salt. At that time Gandhiji removed a Dandi march, so for the common salt, when he for the salt. so what it is done is, जनरली जो हमें सॉल्ट मिलता है वो डायरेक्टली हमें सी बेड से नहीं मिलता, वी डोंट गेट इट फ्रॉम दी सी बेड. सो व्हाट वी हैव टू डू, जो हमें सॉल्ट मिलता है सी बेड से, इट इज जनरली कॉल्ड एज दी रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ impurities. The rock salt that we get from the seabeds are generally called as the are impure salt that can't be used for the they are not edible. So for to make it edible, what we do is there are lot of process which takes place in the industries to purify it, to remove all impurities into it, and some of the nutrients has been added into the salt. okay so it's been then, this is called as, like, you get on whenever you go on the जब अगर तुमने कोई किसी सी बेड को विजिट किया होगा, तो यू कैन सी जब सॉल्ट एकदम ड्राई हो जाता है, जब वो सॉल्ट पैन क्या होता था एकदम ड्राई हो जाता, तो यू कैन सी on that dry there is going to be a brownish crystals. You can see a brown crystal. That brown crystal is nothing but as the rock salt. वो जो brown crystal होते हैं उसको क्या बोलते हो तुम, rock salt बोलते हो. That brown crystal, large crystal often brown due to impurities, this is called as the rock salt. okay
दिस रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल, जैसे हम कोल को अंदर से एक्सट्रैक्ट करते निकालते, दिस इज ऑल्सो माइंड लाइक अ कोल, जहाँ से हम क्या मिलता है एक सॉल्ट निकाल सकते हैं, उसको हम फर्दर प्योरीफाई करके विच कैन बी यूज फॉर द ईटिंग एडिबल पर्पज, कॉमन सॉल्ट. ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर लॉट्स ऑफ थिंग, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर लॉट्स ऑफ थिंग. जैसे कि इट इज़ यूज, दिस common salt is used for the raw material for the preparation of sodium hydroxide. It is been used for the preparation of baking soda. It is been used for the preparation of washing soda, bleaching powder, etc. Okay, these are some of the basic applications where your कॉमन सॉल्ट इज बीन यूज एज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन स्टार्टिंग प्रोडक्ट के लिए कोई भी चीज़ अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है तो दिस इज बीन यूज ओवर देयर. सो तो फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसे होता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग. तो तुम क्या करते हो, यू टेक अ सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, यू टेक अ सॉल्ट सोल्यूशन, एनी कॉमन सॉल्ट को क्या करते हो तुम लिक्विड में, पानी में क्या करते हो, डिजोल्व करते हो. एंड दिस सॉल्ट सोल्यूशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्राइन. Okay, so what is done when you pass the electricity? There is a decomposition taking place. There is a decomposition of the, okay, decomposes, and this sodium decomposes and it gives you rise to the NaOH. NaOH बनेगा solution में, and there is going to be the release of chlorine and hydrogen gas into the reaction. Okay, so mostly you can see, you can, ये जो ऐसा एक रिएक्शन है, दिस इलेक्ट्रिसिटी पासिंग इज कमर्शियल वे में यूज़ किया जाता है. वाई इट इज़ यूज इन द कमर्शियल लेवल, बिकॉज क्या होता है इन दिस रिएक्शन देर इज़ नो इम्प्योरिटी, मतलब तुम्हें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो तुम फेंक सको. वॉट एवर 3 थिंग्स यू गेट, दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर योर फर्दर एनी इंडस्ट्रियल पर्पस. जैसे कि तुम्हारा NaOH हो गया, NaOH हाइड्रोक्साइड इज बीन यूज फॉर अनदर पर्पस. क्लोरीन गैस देर इज़ अ लाइक वाटर प्योरीफिकेशन करना, स्विमिंग पूल्स वगैरह में क्लोरीन गैस वगैरह यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल दैट यू कैन से. अगर हाइड्रोजन गैस का फ्यूल इज़ बीन वेरी गुड, लाइक रॉकेट फ्यूल बोलते हैं हाइड्रोजन का जो फ्यूल्स होता है वगैरह वो. क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड, हाइड्रोजन गैस इज एट द कैथोड. ओके, एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है वो कहाँ पे बनता है, दैट इज फॉर्म नियर दी कैथोड. कैथोड के इर्द गिर्द क्या करता वो सोल्यूशन बनता. बट एनोड से क्या होता तुम्हारा, यू कैन सी फ्रॉम एनोड द क्लोरीन गैस इज बिन रिलीज नेगेटिव पार्ट, एंड फ्रॉम दी कैथोड योर हाइड्रोजन गैस इज बिन रिलीज. एंड दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो एनवायरमेंट में छोड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. सो ओके, सो यू कैन सी दिस हाइड्रोजन गैस, दिस क्लोरीन गैस एंड NaOH. सो अगर तुम क्या करो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो तुम्हारा हाइड्रोजन है दैट इज बीन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल्स, एज आई टोल्ड यू, वेरी गुड फ्यूल, लाइक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमारे पास सोर्स नहीं है. अगर हमारे पास हाइड्रोजन का फ्यूल का कोई सोर्स मिलना अगर हमें चालू हो गया, सो इट विल रिप्लेस एवरीथिंग, एंड योर लाइक इंस्टेंटली योर कार माइलेज एंड एवरीथिंग विल गो एट अ वेरी हाई लेवल, एट अ वेरी गो, क्योंकि उसका इतना एनर्जी वो रिलीज करता है, इट हैज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, इट हैज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू. नेक्स्ट इज अ मार्जरीन. मार्जिन तुम्हें पता रहेगा, इट इज़ जनरली समथिंग विच इज़ अल्टरनेटिव ऑफ बटर. तुम अपने ब्रेड वगैरह पे जो यूज़ करते, दैट इज़ द मार्जरीन. अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते फॉर द फर्टिलाइजर प्रिपरेशन. इफ़ यू एवर feel like going to RCF, like Rashtriya Chemical Fertilizer, you can go over there and you can see the industries over there, or you can just read out, see its layouts. Okay. Next is the chlorine gas water treatment. As I told you, it is used in water treatment. तुमने देखा रहेगा some of the water treatment purpose में हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते ताकि पानी को बैक्टीरिया वगैरह मार सके. दैट इज स्विमिंग पूल, इट इज़ बीन द डिसइंफेक्टेंट, CFC एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ किया जाता. NaOH इज बीन यूज फॉर डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, paper making and artificial fiber. These are the various applications of the sodium hydroxide. Now when you mix hydrogen and chlorine gas, what you are going to get is hydrochloric acid, which is one of the very important acid as your chemistry is concerned. Like they are used for the cleaning steels, ammonium chloride, medicine and cosmetics वगैरह में वो यूज़ किया जाता. नेक्स्ट अगर क्लोरीन और सोडियम
हाइड्रोक्साइड को तुम मिक्स करो, सो दैट इज़ बीन यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पस। जो भी किसके लिए यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक। तुमने देखा रहेगा अगर वाइट कपड़ों पे कोई एकदम स्टेन आ जाती विच इज़ नॉट रिमूव बाय एनी ऑफ दी सोप्स, so what you do is you add this bleaching powder into that white cloth and you can see all the whatever the stains are there, they get removed. Okay, next bleaching powder formation. तो bleaching powder कैसे बनता, it is generally when you pass, अभी तुम्हें क्या मिला था, ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हो तुम्हें क्लोरीन गैस मिला था, तो क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो दैट, what we are going to do is that chlorine gas is stored and passed through another process, प्लांट प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है उस प्लांट में जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता, दिस क्लोरीन गैस इज बिन रिएक्टेड। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, दैट्स अ यू विल गेट अ H2O and what you are going to get is CaCO Cl2. This calcium oxochloride, this generally is nothing but you are called as bleaching powder. This is what you called as a bleaching powder. Okay, bleaching powder is represented by CaOCl2, though the actual composition is quite complex. इसका जो actual composition है वो quite complex है, but you can see it in this way, like this is the exact molecular formula, that is CaOCl2. Bleaching powder का uses तो तुम्हें पता ही होगा, there are various uses, that is it is used for the bleaching for the cotton and linen cloth, as just मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, in textile industry for bleaching wood pulp. अभी जो wood pulps आते हैं तुमने देखा रहेगा ब्राउनिश कलर के होते हैं, जो आप वुड पल्प को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हम पेपर जब कन्वर्ट करते हैं तो ब्राउन पेपर तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, सो उसको वाइटनिंग करने के लिए दिस ब्लीचिंग पाउडर इज बीन यूज, जहाँ पे उसका ब्लीचिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, इट इज कन्वर्ट इनटू वाइटिश कलर, जहाँ पे वो दिस प्लेज अ मेजर रोल योर ब्लीचिंग पाउडर. Okay, and also it is been used for washing clothes in laundries. It is used an oxidizing agent in chemical industries and for disinfecting drinking waters to make it free germ. Like if you have seen, तुम्हारे अगर वेल्स वगैरह होते तो एवरी मंथ क्या होता है, वो वेल्स में थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर हम ऐड करते हैं, वाई टू, अगर उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह रहेंगे सो दैट एक स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, लार्ज अमाउंट इज़ वेरी हार्मफुल, तो स्मॉल अमाउंट में ऐड करते, इससे क्या आता, जो भी डिसइंफेक्ट लाइक जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो किल हो जाते हैं, बैक्टीरियाज एंड जर्म्स दैट गेट्स किल्ड इनसाइड दैट वाटर. ओके, नेक्स्ट इज द बेकिंग सोडा. यू आर वेरी फेमिलियर विद बेकिंग सोडा विच इज़ यूज फॉर मेकिंग केक्स वगैरह बनाते हैं, या हम घर पे पकौड़ास वगैरह बनाते हैं, तो उसको एक फ्लफ़ी और फ्लफ़ीनेस देने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं वहाँ पे. ओके, सो द सोडा दैट कॉमनली यूज इन किचन टू मेक king tasty crispy pakoras is baking soda. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. That is, as you know, that is NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate बोलते हैं इससे. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. So इसका starting product क्या होता, raw material होता. raw material को क्या करोगे, you will treat it with H2O, CO2 and ammonia. You will treat it with H2O, CO2 and ammonia. So that will going to give you ammonium chloride. It is again an important compound, and you get a side product as a sodium hydrogen carbonate. That is generally called as sodium bicarbonate भी बोलते हो तुम इसे. Okay. So you can see why it can be used to neutralize acid. It has a quickly it is a mild non-corrosive basic. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इट इज़ अ बेसिक कंपाउंड एंड विच इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस. ओके, द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज ड्यूरिंग कुकिंग. अब तुमने देखा रहेगा अगर अगर तुम्हें फ्लफ़ी वगैरह चाहिए, तुम केक्स वगैरह तुम बेक करते, पकौड़ा तुम कुक करते, सो वो जब फ्लफ़ीनेस कब आएगा, जब उसको तुम हीट प्रोवाइड करोगे. बट ऐसे तुमने कोई सोल्यूशन बनाया, उसको जस्ट तुमने फ्रीज़र में या ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि उसको वो जो रिएक्शन होता है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, उसको फ्लफीनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. इफ़ यू वोंट प्रोवाइड हीट, द रिएक्शन फर्दर डोंट टेक प्लेस. ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज this sodium bicarbonate you heat, there is a formation of sodium carbonate H2O and CO2. This sodium hydrogen carbonate has got a various household use. Like अगर sodium carbonate भी तुम्हें prepare करना, so you can get it from here. Just simply heat it. You will go उसका decomposition होगा, and in decomposition you will get sodium carbonate H2O and CO2 gas will get released.
As you know, the use of sodium hydrogen carbonate is for baking, used for baking powder when mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid when baking powder is heated mixed with water due to the following reaction takes place. So क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें बेक करना है, सो व्हाट, जो बेकिंग पाउडर हमारे पास आता है, इट इज जनरली इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड जो हम खा सकते हैं. जनरली इट इज जनरली टार्टरिक एसिड. सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द सोल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स, इट गिव्स यू CO2 H2O and you get a sodium salt of acid. Whatever the salt of acid you get, that is there over here. जो भी तुम एसिड यूज़ करते हो यहाँ पे वो हो सकता है. जनरली यहाँ पे टार्टरिक एसिड यूज़ किया है. कोई भी एसिड हो वो H प्लस रिलीज ही कर रहा है. सो दिस इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसिड. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन causes the bread or cake to rise making them soft and spongy. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता इसके वजह से क्या होता, तुम्हारा जो केक होता वो स्पॉन्जी और थोड़ा फ्लफी दिखता. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो द इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. बिन अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. ओके. सो दिस इज ऑल्सो यूज एज एंटासिड. जो इनोज वगैरह हम लेते हैं तो दिस इट जनरली इट कंसिस्ट लाइट अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा इन इट. इट इज़ यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह अगर तुमने देखा रहेगा तो जब तुम स्प्रे करते हो तो वाइट कलर का एक पाउडर आता, दैट पाउडर कंसिस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इन दैट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह हम उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज अगेन ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. अब तक तुमने पढ़ा है कि जो वॉशिंग सोडा होता है जनरली Na2CO3, बट ऐसा नहीं होता. तो इट इज़ Na2CO3 .10H2. अब ये .10H2 क्या, अगर तुम इसको देख के बोलोगे ये सोल्यूशन ड्राई होगा कि वेट होगा, सो योर आंसर विल बी वाटर मॉलिक्यूल है तो ऑफकोर्स वेट होगा. बट ऐसा नहीं होता. एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर तुम प्रोवाइड करो इसको, सो क्या होता, दिस व्हाट हैपेंस इज दिस इज ड्राई इन कंडीशन. तो क्या होता है ये तो 10H2O क्या है, दिस 10H2O इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसको क्या बोलते हो तुम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट जब ये तुम्हें एक क्रिस्टल बनाना है, किसी भी क्रिस्टल को अगर तुम्हें फॉर्म करना है, तो एक क्रिस्टल को फॉर्म होने के लिए इट रिक्वायर्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सराउंडेड टू इट. अगर ये नहीं होगा सो यू वोंट गेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम carbonate. You won't get a crystal structure of the sodium carbonate. Although it is going to be a dry crystal, but जब तुम हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होकर वाटर मॉलिक्यूल अपने क्या करेगा, वो रिलीज आउट करेगा. अगेन तुम उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ क्रिस्टल. ओके. सो दिस सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर फॉर्म्स अ सोडियम कार्बोनेट. दैट इज दिस इज कॉल्ड एज नॉन हाइड्रेटेड क्रिस्टल. दिस इज कॉल्ड एज नॉन हाइड्रेटेड क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. And this is called as the hydrated crystal. This crystal is called as the hydrated crystal क्योंकि इसमें क्या होता है, it consists of the water molecules into it. Okay. Next is the uses of the washing soda. As you know, washing soda नाम है तो it is being used for the making, used in glasses, soaps and paper industries. Okay. It is used in manufacture sodium compounds such as borax. सोडियम कार्बोनेट इज बीन यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस में तुमने देखा रहेगा बहुत, तुम्हारे घर पे बहुत वॉशिंग सोडा यूज़, कपड़े धोने के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन वाटर. अब कपड़े तुम्हें धोने हैं तो हार्ड वाटर से धोगे तो कपड़े खराब होने के चांसेस होते हैं. तो क्या होता है जब तुम इसको पानी में डालते हो तो व्हाट इट हैपन, इट कन्वर्ट दैट हार्ड वाटर इनटू अ सॉफ्ट वाटर. ओके. आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? लेट्स सी, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया. लेट्स सी अ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है इसका हाइड्रेटेड फॉर्म जो होता है इट इज CuSO4.5H2. इट कंसिस्ट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. इट कंसिस्ट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड. सपोज ये बीच में एक CuSO4, तो इसको क्या करेगा, देयर विल बी 5 डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस is H2O. This is together in the form of a bond with it. Okay, ऐसे ये bonding करके रखते हैं. Not it exactly look like this. Just I'm telling you how exactly it happens.
ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दी सॉल्यूशन. अगर तुम उसको हीट करोगे तो तुम देखोगे ये जो इनिशियली, अगर डू यू रिमेंबर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उस पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो था वो कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था. सो अगर तुम्हें कॉपर सल्फेट को तो क्या करोगे, हीट करोगे, सो इट विल टर्न इनटू अ वाइट इन कलर, इट विल टर्न इनटू वाइट इन कलर. ओके, दिस सॉल्ट. बट आफ्टर प्रोवाइडिंग सम, अगर तुम वाटर इसमें अगेन वाटर ऐड कर देते हो इसमें, ओके, सो अगेन इट विल टर्न ब्लू इन color. So it is not dry, it is not a dry, it is generally a water of crystallization that keeps, sorry, it is not wet, it is dry. So इससे तुम पता लगाओगे now the Na2CO3 जैसे तुम्हें बताया it is wet or not, it is not a wet solution, it is a crystal. That crystal, the 10H2O is nothing but the water of crystallization which is there inside your crystal that holds your whole crystal. Okay, same you have the uh, another salt that is known as gypsum. gypsum क्या होता है, जो तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस में को हम क्या करते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज जिप्सम. जनरली जब तुम्हें हाथ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता, सो पहले क्या करता, डॉक्टर तुम्हारे हाथ पे कुछ तो पट्टी बांधता, उसके ऊपर कुछ तो लगाता. सो इनिशियली इट इज़ इन लाइक वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता, बट आफ्टर सम टाइम तुम देखो को एकदम सॉलिडिफाई हो जाता, दैट गेट सॉलिडिफाई, दैट सॉलिड पार्ट इज नथिंग बट अ जिप्सम. एंड जो इनिशियली होता पाउडर दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जनरली पीओपी बोलते हैं हम. दिस पीओपी इज ऑल्सो यूज फॉर हाउस डेकोर पर्पज. तुम देखा रहेगा तुम्हारे सीलिंग्स वगैरह को डेकोर करने के लिए तुम क्या करते हो, पीओपीज यूज़ करते हो. ऑल्सो गणपति वगैरह का फेस्टिवल आता तो उसमें जो मूर्तियाँ वगैरह होती, वॉट एवर द स्टैचूज वगैरह होते हैं, स्टैचूज को बनाने के लिए भी पीओपीज यूज़ करते हैं हम. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इनसाइड इज ऑन हीटिंग जिप्सम at 73 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate semi-hydrated. Of the water molecule is been removed. So this is CSO4 dot half H2O. This becomes semi-hydrated. This is called as the plaster of Paris. ये जो half H2O है, this is what you called as POP, जिसको तुम बोलते हो. That is not pop, it is POP. Okay. So this POP is called as plaster of Paris. सो इसको क्या करते हैं, जब तुम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो, व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड थिक मटेरियल दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज द CSO4.2H2O दैट इज जिप्सम. तो वो जो तुम्हारे हाथ पे रहता है वो तुमने देखा क्या, फ्लो लिक्विड फ्लो होता रहता है उसमें, नहीं ना. सो दैट इज नथिंग बट द क्रिस्टल दैट इज इन होल सॉलिड फॉर्म. तो दैट व्हाट दैट होल्ड्स टू इट इज जनरली कॉल्ड एज द CSO4.2H2O. उसमें जो 2H2O दैट इज बीन एड देयर थ्रू आउट दैट योर सॉलिड मटेरियल. ओके, सो तुम बोलोगे तो रिएक्शन कैसे होता है, दैट इज CSO4.2 हाफ H2O होता है उसमें POP में, एंड जो है उसमें तुम क्या करते हो, 1/2 H2O ऐड करते हो. सो यू गेट CSO4.2 H2O. सो नाउ यू विल से एक और आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होता. सो ऐसे नहीं होता, तो क्या करते हैं हम, अभी इसका रिक्वायरमेंट 1.5 मॉलिक्यूल की है. सो क्या होता, CSO4.half H2O और एक और CSO4.half H2O. ये दोनों क्या करते हैं, ये टोटल 1.5 चाहिए, तो दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को क्या कर लेते, वो शेयर कर लेते. मतलब एक तो इधर चले जाएगा H2O, एक H2O इधर चला जाएगा. अब बचा एक जो है उसमें से हाफ H2O ये लेता और हाफ ये लेता. सो दिस इज हाउ द शेयरिंग इज बीन take place. So now that the half water molecule is shown is attached as water of crystallization, how can you get the water of the molecule? It is written in the form because the formula unit is CSO4 shares 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials in for decoration, used to make surface smooth. Okay, so these are some of the uses of the POPs that I have told you. पहले भी बताया था, सीलिंग्स वगैरह डेकोरेशन करने के, सरफेस स्मूथ करने के लिए, एंड फ्रैक्चर्स वगैरह में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.